السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں اردو ادب کے اہم شخصیت ملا اسد اللہ وجہی، جو اہم مثنوی نگار بھی ہیں اور داستان گو بھی۔ تو آئیے ان کے متعلق اہم سوالات و جوابات کرتے ہیں جو MCQs کے فارم میں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قصیدے پر اور اس کے بعد مثنوی کے فن پر، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ اور اس کے جو مثنوی نگار ان کے بارے میں بات کی تھی۔ آج آپ کے سامنے ملا اسد اللہ خان وجہی۔ تو آپ کے سامنے پہلا سوال ہے، آپ کے سامنے ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ تو آپ کے سامنے 4 آپشن ہے۔ پہلا ہے اسد اللہ، دوسرا ہے وجہ الدین، تیسرا ہے احمد اللہ، چوتھا ہے محمد اسد۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، اسد اللہ۔ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، ملا وجہی کس سال گولکنڈہ میں پیدا ہوئے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہے۔ پہلا ہے 1550 عیسوی، دوسرا ہے 1566 عیسوی، تیسرا ہے 1580 عیسوی، چوتھا ہے 1609 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1566 عیسوی میں گولکنڈہ میں ملا وجہی پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، وجہی کی پیدائش کس قطب شاہی فرمانروا کے دور حکومت میں ہوئی؟ تو 4 آپشن۔ پہلا ہے محمد قلی قطب شاہ کے دور میں، دوسرا ہے جمشید قلی قطب شاہ، تیسرا ہے ابراہیم قطب شاہ، چوتھا ہے عبداللہ قطب شاہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا، ابراہیم قطب شاہ کے دور میں ملا وجہی کی پیدائش ہوئی ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کے سامنے، ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق وجہی نے کن 3 تخلصوں کا استعمال کیا ہے؟ پہلا ہے وجہی، وجیح اور وجیحی، دوسرا آپشن ہے وجہی اسد شاہی، تیسرا ہے وجہی ملا طالب، اور چوتھا آپشن ہے وجہی صابر راقب۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، وجہی، وجیح اور وجیح، یہ تینوں تخلص ملا وجہی نے استعمال کیے ہیں۔ سوال نمبر 5 آپ کے سامنے ہے، ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق مثنوی کتب مشتری میں ہر جگہ کون سا تخلص آیا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے وجہی، دوسرا ہے وجیح، تیسرا ہے وجیح اور چوتھا آپشن ہے اسد اللہ۔ تو ان چاروں میں سے جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ آپشن تیسرا ہو جائے گا، وجیح۔ انہوں نے تخلص اختیار کیا ہے کتب مشتری میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، داستان سبرس میں وجہی نے ہر جگہ کون سا تخلص استعمال کیا ہے؟ لیکن کتب مشتری میں الگ تھا اور اب داستان سبرس میں الگ ہے۔ تو 4 آپشن ہے، پہلا ہے وجیح، دوسرا آپشن ہے وجیح اور تیسرا ہے اسد اور چوتھا ہے وجیحی۔ پھر سے 4 آپشن دیکھ لیجئے، پہلا ہے وجیحی اور دوسرا ہے وجیح اور تیسرا ہے اسد اور چوتھا ہے وجیحی، وجیحی جس کو ہم کہتے ہیں نارملی۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن آپ کا چوتھا والا صحیح ہو جائے گا، وجیح۔ سوال نمبر 7 ہے آپ کے سامنے، وجہی نے اپنے ایک فارسی شعر میں اپنی جائے پیدائش اور آبائی وطن بالترتیب کہاں بتایا ہے؟ پہلا ہے پیدائش ایران، آبائی وطن ہندوستان، دوسرا ہے پیدائش ہندوستان، آبائی وطن خراسان، تیسرا آپشن ہے پیدائش خراسان، آبائی وطن دکن، چوتھا ہے پیدائش بیجاپور اور آبائی وطن شیراز۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، اپنا پیدائش ہندوستان بتایا ہے اور آبائی وطن خراسان۔ سوال نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، جمیل جالبی کے مطابق وجہی نے تاریخ وفات
क्या है? ऑप्शन है पहला 1050 हिजरी के मुताबिक 1640 ईस्वी, दूसरा 1060 हिजरी के मुताबिक 1650 ईस्वी, तीसरा है 1070 हिजरी के मुताबिक 1659 ईस्वी, और चौथा है 1080 के मुताबिक 1670 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला 1070 हिजरी के मुताबिक 1659 ईस्वी। सवाल नंबर 9 आपके सामने है, वजही किस कुतुब शाही बादशाह के दरबार का मलिक शोरा था? तो ऑप्शन है 4, पहला इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरा है कुतुब शाह, और चौथा है अली आदिल शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मलिक शोरा दरबारी शायर थे ये। सवाल नंबर 10 आपके सामने है, मुल्ला वजही ने गोलकुंडा के कितने बादशाहों का जमाना देखा है? तो पहला है 2 बादशाहों का, दूसरा है 3 बादशाहों का, तीसरा ऑप्शन है 4 बादशाहों का, पांचवा है, चौथा ऑप्शन है 5 बादशाहों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 4 बादशाहों का इन्होंने जमाना देखा है। सवाल नंबर 11 आपके सामने, वो 4 बादशाह कौन है जिनका अहद मुल्ला वजही ने देखा? तो 4 ऑप्शन, पहला है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुबुल मलिक, है ना, दूसरा है जमशेद, तीसरा इब्राहिम, और चौथा मोहम्मद कुली। दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तीसरा है मोहम्मद कुतुब शाह, और चौथा अब्दुल्ला कुतुब शाह। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद कुली, मोहम्मद कुतुब, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन ताना शाह। और आपके सामने जो चौथा ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद कुली, अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और मोहम्मद कुतुब शाह। ये 4 ऑप्शन है, इन्होंने इन चारों बादशाहों का जमाना देखा है। सवाल नंबर 12 आपके सामने है, यह मशहूर शेर किस शायर का है? पहला है बेरब्त, जो बेरब्त बोले, नहीं मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो शायर की जो शायरी है ये कहां पर है और किसने कहा है। ठीक है, सवाल फिर से देखिए, ये मशहूर शेर किस शायर का है? जो बेरब्त बोले तो बतिया 25, भला है जो यकबेद बोले सलीस। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला गवासी का है, दूसरा मुल्ला वजही का है, तीसरा नुसरती, चौथा है कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुल्ला वजही का ये मशहूर शेर है। सवाल नंबर 13 आपके सामने है, वजही ने अपनी तसनीफ सबरस में अपनी जबान को क्या नाम दिया है? पहला है दक्कनी, दूसरा है रेख्ता, तीसरा है जबान हिंदुस्तान, चौथा है हिंदवी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, जबान हिंदुस्तान। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी तस्लीम की जाती है? तबाजात मसनवी, पहला ऑप्शन है सैफुल मुलूक व बदिल जमाल, दूसरा है कुतुब मुश्तरी, तीसरा है फूलबंद, चौथा है तूतीनामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कुतुब मुश्तरी। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग इसे इस्तेफादा कर सकें। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने है, मसनवी कुतुब मुश्तरी किस सन में तसनीफ की गई? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला 1018 के मुताबिक 1609 ईस्वी, दूसरा है 1025 हिजरी के मुताबिक 1616 ईस्वी, तीसरा है 1045 हिजरी के मुताबिक 1635 ईस्वी, और चौथा 1055 हिजरी के मुताबिक 1645 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 1018 हिजरी के मुताबिक 1609 ईस्वी। सवाल नंबर 16 आपके सामने है, उर्दू की पहली नसरी और तमसीली किताब कौन सी है? उर्दू की पहली नसरी और तमसीली किताब कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नौतर्ज मुरस्सा,
दूसरा बागो बहार, तीसरा है सबरस, चौथा है फसाने अजायब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सबरस जो है उर्दू की पहली नसरी और तमसीली किताब है। सवाल नंबर 17 आपके सामने है, वजही ने शाहकार तमसीली दास्तान सबरस किस सन में और किसके फरमाइश पर लिखी? तो ऑप्शन है 1609 ईस्वी में लिखी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। दूसरा है ऑप्शन 1635 ईस्वी में लिखा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। तीसरा है 1612 ईस्वी में लिखा, मोहम्मद कुतुब शाह की फरमाइश पर। चौथा है 1640 ईस्वी में लिखा, इब्राहिम कुतुब शाह की फरमाइश पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1635 में लिखा और अब्दुल्ला कुतुब शाह के फरमाइश पर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 18 आपके सामने है, मौलवी अब्दुल हक ने ताजुल हकायक को वजही की तसनीफ करार दिया था, बाद की तहकीक के मुताबिक ये किस बुजुर्ग का कारनामा साबित हुआ? तो ऑप्शन है, पहला शाह वजीउद्दीन गुजराती, जिन्हें शाह वजीउल्लाह भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है शाह मीराजी शमशुल शाह। तीसरा है शाह बुरहानुद्दीन जानम। चौथा है ख्वाजा बंदर नवाज ये दराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, शाह वजीउद्दीन गुजराती की ताजुल हकायक है। सवाल नंबर 19 आपके सामने है, वजही की फारसी शेरी मजमूए का क्या नाम है? तो ऑप्शन है, पहला दीवान असद, दूसरा है दीवान वजही, तीसरा है कुल्लियात वजही और चौथा ऑप्शन है मोहसिन असरार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, दीवाने वजही। सवाल नंबर 20 आपके सामने है, वजही की तमसीली सबरस फारसी के किस हिस्से से माखूज है? पहला है मंतिकुत तैर अत्तार। दूसरा ऑप्शन है दस्तूर शाह किस्सा हुस्न दिल मोहम्मद याह्या सैबक फत्ताही नीसापुरी की। तीसरा है बुस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। चौथा ऑप्शन है किस्सा चार दरवेश अमीर खुसरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो वजही की तमसीली सबरस के जो फारसी किस्से से जो फारसी किस्से से माखूज है उसका नाम है दस्तूर शाह किस्सा हुस्न दिल, जिसको लिखने वाले हैं मोहम्मद याह्या सैबक फताही नीसापुरी। सवाल नंबर 21 आपके सामने है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में वजही ने किसके फर्जी इश्क का किस्सा नज्म किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है इब्राहिम कुतुब शाह और मुश्तरी का। दूसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और बंगाल की शहजादी मुश्तरी का। तीसरा ऑप्शन है अब्दुल्ला कुतुब शाह और जहरा का। चौथा ऑप्शन है अली आदिल शाह और चंद्र बदन का। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और बंगाल की शहजादी मुश्तरी का फर्जी किस्सा नज्म किया है। सवाल नंबर 22 आपके सामने है, दास्तान सबरस को दरियाफ्त करके पहली बार किस मुहक्किक ने मुरत्तब व शाया करवाया? तो पहला ऑप्शन डॉक्टर जोर, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक जिनको बाबा उर्दू भी कहते हैं, तीसरा है काजी अब्दुल वदूद, चौथा है रशीद हसन खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मौलवी अब्दुल हक ने दास्तान सबरस को दरियाफ्त करके पहली बार इसको मुरत्तब और शाया करवाया था। यहीं पर हमारा सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग इसे इस्तेफादा कर सकें। यह आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत अहम और कारगर साबित होगा। आने वाले एग्जाम में भी जैसे बीपीएससी, आरपीएससी, DSSB ये सब में बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।